Hmm. So we are doing question number 91, and in question number 91, we can see that X Limited had like issued a prospectus inviting applicant for 2,000 shares at the rate 10 each at a premium of 4 per share. So at application, they are asking 5 rupees for the call and 1 for the premium. Allotment may 1 rupees for the call and 1 rupees for the securities premium. And first call may be 2 rupees for the call and 1 for the premium. And second call may it is 2 rupees for the call and 1 rupees from the premium. So you can check 5 plus 1 plus 2 plus 2, that is equal to 10, and 1 plus 1 plus 1 plus 1, that is equal to 4 premium. Now category and how much shares had been applied and how much shares किसने कितना अप्लाई किया, हमने किसको कितना दिया allotted, and फिर उसके बाद हमारा शेयर एप्लीकेशन में कितना रुपए गया, शेयर एप्लीकेशन में हमारे को कितने रुपए मिले, उसके बाद how much amount has been changed to like share capital, उसके बाद how much amount has been adjusted to SPR for the premium, then what is the excess के बाद what amount would be sent to share allotment. Of share allotment maybe we can bifurcate the receive amount to share capital plus SPR, and if since there is no excess amount and anything over excess, the allotment will be sent to the bank as a refund to refund the amount if we don't allot the shares. So category table can be seen here. So now we need to see the question and try to do the सबसे पहले we have a category one. In the question we can see that they are recording like for example application has been received for 3,000 shares. Since we have invited only 2,000 shares, so allotted cannot be greater than 2,000. So in category one they are telling कि 2,400 shares को हमने pro rata allot करा, मतलब pro rata जितना shares है उतना ही दिया, 2,000 दिया. इसका मतलब हमारा रिमेनिंग जो 600 शेयर्स है उसको कुछ नहीं दिया, आपने कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास बचे ही नहीं है तो अब देंगे कहाँ से, खत्म. So now 2,400. So what is the amount in application you are asking? That is 6. So 2,400 into 6 is like 14,400. 14,400. So now 2,000. What amount I'm asking on the capital? कैपिटल पे मैं 5 रुपए जाएगा, प्रीमियम पे 1 रुपया आएगा, तो 2,000 into 5 is 10,000. 2,000 into 1 is 2,000. So the excess 14,400 minus this 12,000 we have 2,400. अब हमने इसको शेयर्स दिया है 2,000, तो अलॉटमेंट पे मांगेंगे 2,000 into 1 कैपिटल में 2,000, and the excess 400 like is left out, that is being transferred to SPR. Nothing is left for refund. अब 600 इसको दिया कुछ नहीं, मतलब इससे ले लिया हमने 3,600 rupees. So no, everywhere will be dash dash, excess में will have 3,600 and this excess shall be refunded. इसका पैसा था उसको कुछ हमने दिया नहीं तो उसका पैसा वापस कर देंगे. So 3,600. So our table is more or less completed. Now we have to see there must be certain default category. Someone who has not paid the amount, we have to see accordingly. So it is like your So we can see here 3,600, 600 and 2,000 on allotment and 400 on SPR has been received from the excess amount. So this amount is an advance received from application. That is application का जो बचा हुआ पैसा ये एक तरह से advance है. This is advance received of allotment का advance हमें excess पैसा मिल गया. अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे X को नहीं मिला और Y को नहीं मिला, वो हमें देखना है. तो अब सबसे पहली बात हमें x को कितना नहीं, x जो है फ्रॉम माय क्वेश्चन वी कैन सी दैट x हैज़ बीन अलॉटेड हाउ मेनी शेयर्स 40 शेयर्स. तो उसका हमें फाइंड करना है अप्लाइड. तो यहाँ तो एक ही कैटेगरी का है तो वो इसी कैटेगरी का है. तो इस कैटेगरी में अप्लाइड इज 24, अलॉटेड इज 20. तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ही हैड अप्लाइड 48 शेयर्स. तो 48 शेयर्स है तो आपने इससे ले लिए 48 इंटू 6 रुपीज़ एप्लीकेशन यू हैव टेकन 288 रुपीज़. दैट 288 रुपीज़ में से 40 इंटू 5 200 इज फॉर शेयर कैपिटल एंड 40 इंटू 1 40 इज फॉर SPR. So I'm like aligning with the same table only, you can look into that. उसके बाद the excess money is left is that is called 48 rupees. So that 48 में से
40 हमने उसको अलॉट किया, तो अलॉटमेंट पे उसको 1 रुपया देना है, तो 40 वन जा 40। अब एक्सेस पैसा प्रीमियम पे चला गया। डन। सो हमारा ये उसका कैलकुलेशन हो गया कि हाउ मच अमाउंट हैज बीन। अब एक्स में, एक्स से हमारे को अलॉटमेंट में कितना रहे मिलने वाला, वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। एक्स से टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो हमारे को एक्स से अलॉटमेंट पे मिलने वाला है, दैट इज़ योर, हमने इसको 40 शेयर्स दिया, तो 40 इंटू 2 रुपीज़, 80 रुपीज़ अलॉटमेंट में मिल रहा है, लेस एडवांस ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे जो उसका एडवांस हो गया है, दैट वी कैन सी दैट इज़ 48 रुपीज़। ये आपका 48 रुपीज़ एप्लीकेशन पे ही उसका एडवांस हो गया, तो हमने 48 रुपीज़ वो माइनस कर दिया। तो एक्चुअली कॉल्स इन एरियस जो है दैट इज़ 42 रुपीज़। अब एक्स ने हमारे को अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए, और एक्स ने फर्स्ट कॉल पे भी नहीं पैसे दिए, तो फर्स्ट कॉल पे तो उसका कोई एडवांस नहीं है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे उसका फोरफीट हो जाएगा। 40 इंटू हमारा फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, मान लो 3 रुपीज़, तो 120। तो एक्स का हमारा अलॉटमेंट पे 32 हो गया, कॉल्स नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे हो गया 120। इसी तरह देर इज़ वन मोर पर्सन कॉल वाई, तो लेट्स फाइंड वाई का। अब y के केस में we can see that it is given that 72 shares has been applied, 72 shares has been applied। तो y का सिर्फ हमें शेयर्स निकालना है एंड हमें फॉरफीट करते हुए कैलकुलेशन चाहिए उसके लिए। तो 72 शेयर्स हमने y का यहाँ पे अप्लाई किया, तो अलॉट कितना होगा 72 इंटू हमें चाहिए कितना यहाँ पे 20/24, तो 3 है, तो ही मस्ट हैव बीन अलॉटेड 60। तो हमने इसे ले कितना लिया होगा, हमें वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका अब इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल दिया, तो हमें नहीं पे करा है, तो हमें सिर्फ इसका अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए था, सो डैट हम निकाल पाएंगे कि इसने कितना डिफॉल्ट किया फर्स्ट कॉल पे। ये कोई एडवांस तो है नहीं, और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल इसने नहीं पे किया वाई ने। तो वाई का जो फर्स्ट कॉल पे है दैट इज 60 इंटू 3, ये डिफॉल्टेड 180 रुपीज़। 60 into 3 on final call also he defaulted 180 rupees. So I think all the calculation has been done. So now we are good to go with the journal entries. So I'll remove, I'll just get back to every time when I do journal entries, you need to see the table. So I'm writing all the journal entries, and उसके बाद I'll write the table. First of all, I'm writing all the journal entries, what I have, what's required. एक second में थोड़ा, so bank to share application, share application, share application, share application to share capital. So we'll do all the journal entries and put the values. तो बैंक में तो हमने टेबल में 18,000 लिखा है, आप देख सकते हो शेयर एप्लीकेशन जहाँ लिखा होगा उसका टोटल 18,000 है, तो वहाँ 18,000। टू शेयर कैपिटल हमारा कुछ पैसा SPR पे है, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है, और कुछ पैसे हमारे शेयर अलॉटमेंट पे गए हैं, एंड कुछ पैसा हमने रिफंड करना है। दैट इज़ वो टेबल से आपको सारा दिखेगा, आप टेबल से देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल में हमारा गया होगा आई थिंक 10,000 रुपीज़, एंड SPR में 2,000 रुपीज़, अलॉटमेंट पे देर इज़ 2,400 रुपीज़, एंड रिफंड हमने कर दिया 3,600। यू कैन चेक इट फ्रॉम टेबल। So now share allotment के entry, share allotment, it's due का entry to share capital to SPR, to SPR, so that is your this यहाँ पे this is 2,000 शेयर्स हमने इशू किया था, और हम 2 रुपये मांग रहे हैं, तो हमारा 4,000 आ जाएगा, और कैपिटल पे 1 रुपया, SPR पे 1 रुपया, तो 2,000 और 2,000। अब हमारे को बैंक में कितने पैसे नहीं मिले, तो हम अलॉटमेंट पे सिर्फ एक्स ने डिफॉल्ट किया है, तो हम वो देख लेंगे। बैंक, यहाँ पे हम लिखेंगे योर कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस जो अलॉटमेंट में पैसे नहीं मिले वो हम एरियस देखेंगे, एंड टू दैट इज योर शेयर अलॉटमेंट। अब वील चेक इट अगेन कि भाई अलॉटमेंट पे हमारे को मिलना कितना है, 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपीज़ में से हमें 2400 तो पहले ही मिल चुका है, तो हमें और 1,600 चाहिए। 1,600 में से हमारे को 32 रुपीज़ नहीं मिले हैं, एक्स के 32 रुपीज़ है, ये एक्स का कॉल्स इन एरियस है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं टेबल में, हमने 32 का कैलकुलेशन करा है, 1,600 माइनस 32 दैट इज 1,568 रुपीज़ हमारे को मिला है। ठीक है, नाउ विल कम टू द फर्स्ट कॉल के एंट्री। फर्स्ट कॉल के एंट्री वी हैव अ फोर फीचर आफ्टर दैट। सो फर्स्ट कॉल के एंट्री में वी कैन सी हियर
share first call, sorry, share first call to share capital to SPR. So what is my entry? That is 2000 into 3, 2000 into 2, और यहाँ पे हमारा 6000 है, यहाँ पे हमारा 4000 है, यहाँ पे हमारा 2000 है। ठीक है डन। अब यहाँ पे फिर हमारा बैंक कॉल्स एंड एरियस, फर्स्ट कॉल पे वाई ने भी डिफॉल्ट किया है, तो एक्स एंड वाई दोनों का आएगा टू हमारा शेयर फर्स्ट कॉल, और शेयर फर्स्ट कॉल पे कोई एडवांस तो मिला नहीं है, तो पूरा का पूरा 6000 यहाँ पे आएगा। अब 6000 में से मेरे को x का कितना नहीं मिला, y का कितना नहीं मिला, तो आई गेट दैट, आप टेबल में देखेंगे x का 120 रुपीज़ एंड y का 180 रुपीज़, तो दैट इज 300 रुपीज़, और मेरे को मिला ऐसे 5700 रुपीज़। अब इसके बाद हमारे को यहाँ पे x का शेयर फॉरफीट करना है, तो x का शेयर फॉरफीट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल डेबिट, ये फॉरफीचर ऑफ x का शेयर है, मैं लिख दे रहा हूँ फॉरफीचर ऑफ x, फॉरफीचर ऑफ x 40 शेयर, x का 40 शेयर फॉरफीट कर रहा हूँ। ठीक है, और शेयर फॉर शेयर कैपिटल, और हमारे को प्रीमियम भी नहीं मिला तो SPR भी डेबिट होगा, एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट होएगा। अब शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ पे, एंड टू हमारा कॉल्स इन एरियस आएगा, कॉल्स इन एरियस। अब हमने कितने शेयर फॉरफीट किए, 40। अब हम इसको फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट करें तो फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट आएगा, दैट इज, आप चाहे तो देख लें अपने उसमें स्टार्टिंग में जाके 5 + 1 + 2, तो हमारा 8 रुपीज़ हो गया, तो 40 इंटू 8 320 रुपीज़ हो गया। फिर हमारा SPR, तो SPR हमारा कितना नहीं मिला, तो अब इसका हमारे को देखेंगे, अलॉटमेंट पे हमारा 40 में से 8 पेड है, तो अलॉटमेंट का 32 बाकी है, एंड फर्स्ट कॉल का 40 रुपीज़ बाकी है, ओवरऑल अलॉट हमारा SPR भी 72 हो जाएगा, 32 + 40, क्योंकि यहाँ पे नॉट रिसीव्ड आता है, जो नहीं मिला है वो आता है। शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट मिल चुका है बट प्रीमियम हटाकर, यहाँ पे हम प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते, तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे को क्लियरली दिखेगा कि दैट वी हैव पेड हाउ मच, यू कैन चेक, अगर हम टेबल पे जाके देख लेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। हम देख रहे हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे को 200 शेयर कैपिटल, हमें सिर्फ शेयर कैपिटल वाला ही अमाउंट लेना होता है। अब अलॉटमेंट के शेयर कैपिटल में ये आया, हम प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं लेते हैं शेयर फॉरफीचर में, तो अभी मेरे पास सर्कल मैंने क्या किया 240, जैसे 240 आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 240, शेयर फॉरफीचर मेरा हो गया 240, और मेरा जो कॉल्स इन एरियस है, मेरा 32 अलॉटमेंट का बाकी था एंड 120 फर्स्ट कॉल का बाकी था, सो दैट इज 152, यू कैन टैली बोथ मस्ट बी इक्वल, नहीं तो हम गलत है, आई थिंक दोनों इक्वल ही, वी आर करेक्ट। सो नाउ लेट्स मेक द फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री, अब ये फॉरफीट तो हो गया, तो हम शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, सर शेयर फाइनल कॉल की, सॉरी शेयर फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, फाइनल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू शेयर कैपिटल टू SPR, तो यहाँ पे भी सेम है, हम 3 रुपीज़ मांग रहे हैं, बट यहाँ पे हमने 40 शेयर्स को फीड करनी है, तो अब हमारा 1960 शेयर्स को सिर्फ हम कॉल कर सकते हैं इंटू 3, सो 1960 इंटू 3 दैट इज 5880, ठीक है। सो नाउ आई विल बी कॉलिंग 1960 इंटू 2, 1960 इंटू 2 दैट इज 3920, और 1960 इंटू 1 दैट इज 1960, सॉरी, ये हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे आपको बैंक की एंट्री, पैसे कितने मिले, बैंक कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हमें 5880 मिलना चाहिए था, जिसमें से y, क्योंकि x को तो हमने फॉरफीट कर लिया, तो x का आप डालेंगे नहीं, तो y का 180 रुपीज़ ड्यू है, हमने टेबल के वक्त निकाल लिया था, तो -5700 हमारे को बैंक में मिल गया। अब इन्होंने बोला y के शेयर्स भी फॉरफीट करो, तो y के शेयर्स भी फॉरफीट करेंगे, तो सेम मेंटेन करेंगे शेयर कैपिटल, यहाँ पे वाइज फॉरफीचर वाइज शेयर हम फॉरफीट करें, पैसे नहीं देंगे, फॉरफीट कर देंगे बाद में। शेयर कैपिटल SPR नॉट रिसीवेबल आएगा, टू शेयर फॉरफीचर जितना मिल चुका है प्रीमियम इंक्लूड किए बिना, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना है, एंड टू कॉल्स इन एरियस, हम लोग सारा कैलकुलेट कर चुके हैं, आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं,
तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 60 रुपीज़ और हमने 10 रुपीज़ तक पूरा फाइनल कॉल किया तो 600 रुपये हमारे हो गए। फिर हमारा जो SPR है, मेरा 1 रुपया हो गया आपको, आप मैं यहाँ पे 1 + 1 लिख रहा हूँ, 1 रुपया मेरा फर्स्ट कॉल का, 1 रुपया मेरा सेकंड कॉल का, 2 रुपीज़, तो 60 × 2 120 रुपीज़। अब मेरे को मिले कितने रुपए हैं, मेरे को मिले कितने रुपए हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, इसने सिर्फ अलॉटमेंट तक पे किया था, उसके लिए आपने पीछे देखा फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट को, तो 60 × 5 रुपीज़ एप्लीकेशन का, 1 रुपीज़ अलॉटमेंट का। हमें यहाँ प्रीमियम नहीं इंक्लूड करना, उसके लिए मैं 5 और 1 लिख रहा हूँ, तो 60 × 6 दैट इज 360 रुपीज़। और हमारे को एरियाज कितने हो गए, हमने कैलकुलेट कर लिया था कि फर्स्ट कॉल पे इसमें 180 मीडिया, सेकंड कॉल पे 180 मीडिया, तो ये भी 360 आ गया। सो फॉर फीचर इज डन। सो नाउ बैंक, ठीक है, बैंक, अब हम इसको रीइशू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम इसको रीइशू कितने रुपए में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है कि आप इसको रीइशू कर लो। अब इसके सारे शेयर्स रीइशू नहीं करने, इसके सिर्फ 80 शेयर्स करने हैं। तो अब हमें यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम किसके शेयर रीइशू कर रहे हैं। तो हमें लिखा है यहाँ पे कि वाई के ऑल शेयर्स है, तो वाई के 60 हैं, मतलब एक्स के कितने होंगे, बैलेंसिंग फिगर 20 शेयर्स ही होंगे, तो मतलब वाई के 60, तो रीइशू से फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉफिट निकालते वक्त फर्क पड़ेगा, तो रीइशू आप कर सकते हैं आराम से। और ये हमारे को @ 9 रुपीज़, मतलब 9 रुपये, 1 रुपये का लॉस हो गया हमारे को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे आपको 60, यहाँ पे 80 × 10, क्योंकि 10 रुपये का शेयर है तो हमारा 800 आना चाहिए था। अब हमें आएंगे कितने, क्योंकि हमने 9 में बेचा तो 80 × 9 720 ही आएगा। तो लॉस हमने कितने का करा लिया, 80 × 1 दैट इज 80 रुपीज़ का लॉस करा लिया। तो शेयर फॉरफीचर आप ध्यान से देखेंगे, जब हमने फॉरफीट करते हैं तो मैं इसको येलो कलर से सर्कल कर रहा हूँ, तब ये क्रेडिट होता है। जब हम रीइशू करते हैं तो शेयर फॉरफीचर डेबिट होता है। तो ये जो शेयर फॉरफीचर का डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट होगा। अब मैं वापस आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ एक्स के भी, एक्स का हमने फॉरफीट किया, तो एक्स का भी शेयर फॉरफीचर मैं सर्कल करूंगा, क्योंकि अब जो मेरा डिफरेंस निकलेगा मैं वही निकाल रहा हूँ आपको, कि मेरे को प्रॉफिट में कितना अमाउंट हुआ, वो नेट प्रॉफिट वाली एंट्री मेरे को करनी है। तो नेट प्रॉफिट वाली एंट्री में कर दे रहा हूँ, अमाउंट में कैलकुलेशन निकाल देंगे आपको। ये मेरा एंट्री होगा, शेयर फॉरफीचर को खत्म करना होता है। तो शेयर फॉरफीचर हम रीइशू कभी भी लॉस पे नहीं कर सकते, हमेशा प्रॉफिट होगा या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लॉस कभी नहीं हो सकता। तो कैपिटल रिजर्व अमाउंट कितना डालेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट। तो हमें इसमें करना क्या है सर, हमें इसमें इनका तो एक्स और वाई है, हमें उससे मतलब नहीं, हम यहाँ लिखेंगे टोटल। यहाँ पे डेबिट में तो 80 रुपीज़ क्लियर है, हमारा दिख रहा है सामने 80 रुपीज़ ये रहा। अब क्रेडिट में वाई का तो हमें दिख रहा है 360 रुपीज़, वाई का 360 रुपीज़, क्योंकि इसके तो सारे शेयर्स फॉरफीट कर लिए ना, तो सारे ले लेंगे। बट एक्स का 40 शेयर्स फॉरफीट किया था और आपको सिर्फ 20 रीइशू कर रहे हैं, तो 40 शेयर्स के हमारे 240 आ रहे हैं। आप देखेंगे ऊपर जाके 40 शेयर्स का 240 आ रहा है। तो ये हम लोग क्लास 6 में पढ़ते हैं, तो हम लोग इस मैथ्स को अपना यूनिटरी मेथड सुधार लेना चाहिए, बार बार टीचर्स को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि 40 शेयर्स का शेयर फॉरफीचर 240 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला बना दिया, जिन बच्चों को यूनिटरी मेथड नहीं आता उनके लिए, दैट इज शेयर फॉरफीचर क्रेडिट इनटू रीइशूड शेयर्स अपॉन फॉरफीटेड शेयर्स। कितना क्रेडिट, कितना शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है 240 सर, इसका रीइशू कितना है 20, फॉरफीट कितना गया था 40। ये उन लोगों के लिए जो अप्लाई नहीं कर पाते एनालिटिकल माइंड रखने वाले बच्चे, यहाँ पे आपके लिए अच्छी चीज़ है 120, ठीक है। तो 120 आ गया, अब मैं ये 120 यहाँ लिख दूंगा, अब मैंने ये 120 यहाँ लिख दिया, तो 120 एंड 360 दैट इज माई 480। अब 480 में से 80 माइनस करो दैट इज माई 400। ये मेरा कैपिटल रिजर्व है और ये हमने बहुत प्यार से लिख दिया और यहीं पे ख़त्म होता है।